আপনারা দেখছেন দিগন্ত নিউজ। নদিয়ার ফুলিয়াতে হলো চায়ে পে চর্চা। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মাননীয় সঞ্জীব কুমার বলিয়ানজি মহাশয়। ব্যুরো রিপোর্ট, দিগন্ত নিউজ। হাওয়াই চটি পরে ছিঁড়ে সেফটি বেল্ট লাগিয়ে জনগণের দরিদ্র মানুষের বন্ধু সততার প্রতীক দেখাতো, টালির চালের ঘর দেখাতো। কিন্তু এখন মানুষ জেনে গেছে সবই ওর ধাপ্পাবাজ। সবচাইতে জনগণকে প্রতারিত করে চিট ফান্ড। কে প্রতারিত হয়নি? দরিদ্র মানুষ। তাদের দলের লোকেরা বলতো হ্যাঁ 3 মাসে ডবল হবে, 6 মাসে ডবল হবে, 2 বছরে ডবল হবে। আর সাধারণ মানুষ টাকার লোভে, তাদের দোষ নেই, তারা অজ্ঞ মানুষ। এই চিট ফান্ডের টাকা দিয়েছে, আর সেই টাকায় মমতা ব্যানার্জি প্রচার মাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে সততার প্রতীক সেজে তিনি এসছে। যখন সিবিআই তদন্ত করতে যাবে, জনগণের টাকা দিয়ে সেই তদন্ত ঠেকানোর চেষ্টা করেছে। অর্থাৎ এতটা করাপ্টেড মুখ্যমন্ত্রী আমার তো মনে হয় ভারতবর্ষে কেন পৃথিবীর কোন দেশের মধ্যে নেই। সততার প্রতীক তার এই অবস্থা, সর্বত্র ধাপ্পাবাজি। তাই ওই আয়ুষ্মান ভারতের কার্ড থাকার জন্য সবুজ সাথী কার্ড এখন দুয়ারে দুয়ারে সরকার চলে আসছে। আসলে তদন্ত হলে সমস্ত ক্ষেত্রে ধরা পড়ে যাবে, দুয়ারে নয়। ওই পশু খাদ্য কেলেঙ্কারিতে লালু প্রসাদ যেখানে খোঁয়ারে গেছে, আগামী দিন সেই খোঁয়ারে থাকতে হবে, এটা নিশ্চিত। নম্বর থেকে 21 নম্বর শক্তি প্রকল্প বলছি, সন্তোষ রাজওয়াল। আমি বলতে চাচ্ছি আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টি যে এত বিস্তার লাভ করেছে, বেশিরভাগ দেখি গরিব মানুষের সব থেকে বেশি। সেই উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে ঘর প্রচুর মানুষের নেই, যাও বা ঘরের লিস্টে নাম এসেছে সেগুলো হয়নি। এবার আমিও মাননীয় সংসদের কাছে প্রশ্ন করতে চাই যে আপনার তরফ থেকে যদি এই আপনার নদিয়া জেলার এলাকায় মোটামুটি খুব গরিব মানুষ থেকে কিছু লোকে আপনার তরফ থেকে ঘর পায়, এটা কি সম্ভব আপনার তরফ থেকে? এটাই শুনতে চাচ্ছিলাম। আসলে এমপির তালিকাভুক্ত বিষয় নয়, রাজ্য সরকারের বিষয়। একমাত্র 3টি দত্তক নেওয়া গ্রামে অনুমতি সাপেক্ষে এই প্রজেক্ট হতে পারে, আর অন্যান্য প্রজেক্টও হতে পারে, তার বেশি কিছু নয়। একটা এমপি দত্তক নিতে পারে 3টি গ্রাম ডেভেলপমেন্টে, এটা আমাদের আইনের মধ্যে আছে। তার বাইরে সে কোথায়ও ওই আবাস যোজনার কাজ করতে পারে না, বা অন্য ক্ষেত্রেও কিছু করতে পারে না। আর একটা কথা, অতি সত্য কথা বলেছে যে ভারতীয় জনতা পার্টি দরিদ্র মানুষই বেশি, পিছিয়ে পড়া সমাজের মানুষই বেশি, এসসি, এসটি, ওবিসি, এরাই হচ্ছে ভারতীয় জনতা পার্টির ধারক বাহক। কিন্তু কিছুদিন আগে আমরা দেখতাম বামপন্থী বন্ধুরা কি বলতো, বিজেপি পার্টি বড়লোকের পার্টি, বিজেপি পার্টি ব্রাহ্মণদের পার্টি, বিজেপি পার্টি ব্যবসাদারদের পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি এটা অপপ্রচার করত। কিন্তু দেখুন ভারতবর্ষে যেখানে বিজেপি বারবারান্ত, কোথায় পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষ, যেখানে ওই ট্রাইবাল এরিয়ায়, ওবিসি এরিয়ায়, আজকে মতুয়া সমাজ যেখানে, সেখানে বিজেপি ভালো রেজাল্ট করেছে। পশ্চিমবাংলায় শুধু নয়, আপনি চলে যান ঝাড়খণ্ডে। ঝাড়খণ্ডে প্রথমে বিজেপিকে এনেছে অনেক দিন আগে, ছত্তিশগড়, বিহারের ট্রাইবাল এরিয়া, উড়িষ্যার ট্রাইবাল এরিয়া, এই যে পিছিয়ে পড়া জায়গাগুলোতে সর্বপ্রথম ভারতীয় জনতা পার্টি এসছে। তার পেছনে কারণ আছে। এর পেছনে কারণ হচ্ছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সামাজিক সংগঠন, তারা বনবাসী কল্যাণ আশ্রম তৈরি করেছে, তাদের জন্য উন্নয়নের কাজ করেছে, তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে, তাদের শিক্ষা দিয়েছে, তাদের স্বাস্থ্য দিয়েছে, আমাদের সমাজটাকে বাঁচানোর জন্য, যাতে বিদেশি কালচার না ঢুকে পড়ে, ট্রাইবাল মানুষ যাতে খ্রিস্টান না হয়ে যায়, তার জন্য সেবাদের কাজ করেছে। যে কোনো মডেলের ইয়ামাহা কোম্পানির বাইকের জন্য বা স্পেয়ার পার্টস অথবা সার্ভিসিং এর জন্য আজই আসুন ইয়ামাহা বাইকের অথরাইজড ডিলার আদ্দামা অটোমোবাইলে, সিবি রোড, চাকদহ, নদিয়া। মোবাইল 7501112558। जो क्वेश्चन है, अरे बंगाल का आदमी टीवी में तो सब जानता है, हिंदी सोचता है, लेकिन बोलने का आदत नहीं है, इसलिए बोल नहीं पाए। लेकिन हिंदी सब भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अशोक जी,
संसद में मेरे साथी और आपके सांसद जगन्नाथ भाई, बॉबी भाई, उपस्थित साथियों, चाय पे चर्चा कार्यक्रम की शुरुआत 2013 में हुई थी जगन्नाथ जी, जब मोदी जी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हुए और विपक्षी दलों ने उन्हें चाय वाला कहना शुरुआत की, तो भारतीय जनता पार्टी ने चाय पे चर्चा की शुरुआत की। क्योंकि आज भी हिंदुस्तान में चाय और पान की दुकान पे हम राजनीतिक चर्चाएं भी करते हैं और बहुत बड़े बड़े देश के निर्णय लोग आपस में चर्चा करके वही लेते हैं। आज 2020 है, अगर मैं याद करूं तो 2014 में मात्र 2 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी और आज 2019 में 18 सांसद चुने गए। और आज अगर जो विधानसभा चुनाव आने वाला है उसमें कार्यकर्ता और जनता का जिस तरह का उत्साह और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, मुझे लगता है कि 2021 में निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार, और ये सब यहां के कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है, यहां का जनता का आशीर्वाद। एक बहुत लंबा समय कम्युनिस्ट शासन में पश्चिम बंगाल ने देखा, उसके बाद टीएमसी की सरकार रही पिछले 10 साल। অর্পিতা ইলেকট্রনিক্স, এখানে বিভিন্ন নামি দামি কোম্পানির এলইডি টিভি, হোম থিয়েটার, ডিশ টিভি, মিক্সচার গ্রাইন্ডার সহ সব ধরনের ইলেকট্রনিক্স দ্রব্য পাইকারি ও খুচরো পাওয়া যায়। ঠিকানা সিবি রোড, ভারতী সিনেমা হলের উল্টো দিকে, চাকদহ নদিয়া। অর্পিতা ইলেকট্রনিক্স द्वारा तो सन 2013 से चलाया जा रहा है। इसमें हम लोगों से बात करते हैं, कार्यकर्ता या उस क्षेत्र के लोग, और जिस तरह का उत्साह और जो वातावरण पश्चिम बंगाल में दिखाई देता है, उससे एक बात तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता। पश्चिम बंगाल की जनता को ये पता लग चुका है कि मोदी जी की जितनी भी योजनाएं हैं जो गरीब किसान के हित में है, मजदूर, हर तबके के लिए, उसका लाभ पश्चिम बंगाल की जनता को टीएमसी सरकार द्वारा नहीं दिया गया। चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, 6,000 रुपये जो एक किसान का हक है पश्चिम बंगाल के, वो उसे नहीं दिए गए। आयुष्मान भारत 5 लाख तक के इलाज का हक है, वो उसको नहीं मिला। प्रधानमंत्री आवास योजना में 2 करोड़ पूरे देश में बढ़ते, उसका लाभ नहीं मिला। मेरे मंत्रालय की जो फिशरी की योजना है, उनका लाभ भी पश्चिम बंगाल के फिश फार्मर को नहीं दिया गया। विकास की हालत हम सब देख सकते हैं, भ्रष्टाचार यहाँ पे हावी है, गुंडाराज हावी है। पश्चिम बंगाल की जनता ने मन बना लिया कि इन सबको समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनाने का मन जनता बना चुकी है। ममता जी तो बोल रहे हैं आप लोगों को 30 सीट भी नहीं देगा। ममता जी के हाथ में हो तो शायद वो ना दें, पर मुझे लगता है इस निर्णय का अधिकार तो पश्चिम बंगाल की जनता का है, ममता बनर्जी का नहीं। यहाँ तो पब्लिक ने बोला आपको कि प्रधानमंत्री योजना का जो घर जो मिल रहा है वो गरीबों को नहीं मिल रहा है, क्या ये काम करेगा गरीबों? किसी को भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि मेरे मंत्रालय में 53,000 करोड़ का आयुष्मान भारत का बजट दिया गया, 20,000 करोड़ फिशरीज के लिए, जो कि यहाँ का मुख्य वो कह सकते हैं फिश, और बंगाल को अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन जब बंगाल सरकार कोई प्रोजेक्ट ही नहीं भेजेगी इन सरकार को, तो जब तक केंद्र सरकार के पास प्रदेश सरकार से प्रोजेक्ट नहीं जाएंगे, प्रपोजल नहीं जाएंगे, तो केंद्र सरकार पैसा कैसे भेजेगी, कैसे बंगाल की जनता का लाभ होगा? आप लोग आकर कह रहे हैं कि यहाँ पे वायलेंस चल रहा है, आइन नहीं है, लेकिन तृणमूल की ओर से बता रहे हैं कि आप लोग जिस स्टेट में सरकार चला रहा है, यूपी में, वहाँ पे दलित पे ऊपर अत्याचार हो रहा है, रेप हो रहा है। आप यहाँ आकर कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहे हैं, आइन श्रृंखला एकदम खत्म हो गए। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार है, राजनीतिक रूप से कोई हिस्सा उत्तर प्रदेश में पिछले कई वर्षों से नहीं। अगर कहीं आपके याद हो तो आप मुझे भी बताइए। और पश्चिम बंगाल में क्या है, ना राजनीतिक प्रोटोकॉल है, ना राजनीतिक शिष्टाचार है। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर रोज हमले होते हैं, रोज बदतमीजियाँ होती हैं, 300 कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। ऐसा देश में भाजपा ही नहीं और सरकारें भी हैं, लेकिन राजनीतिक हिंसा इस देश में अगर कहीं बची है तो पश्चिम बंगाल में ही बची है। सीए कब तक लागू होगा? सीए तो अभी तो लागू नहीं हुआ, सीए लेकर बहुत चर्चा चल रही है। इस सरकार का कार्यकाल 26 मई तक का है। मुझे उम्मीद है कि 27 मई को भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री यहाँ शपथ लेंगे
और 27 मई को पश्चिम बंगाल में सीए और NRC दोनों लागू। बंगाल में जो कह रहे थे बंगाली मुख्यमंत्री बनेगा, सौरभ गांगुली का नाम आ रहा है, क्या वजह है? बंगाली मुख्यमंत्री बनेगा ये मुझे भी पता है, भारतीय जनता पार्टी को पता है। जब बंगाल है तो बंगाली मुख्यमंत्री बनेगा। अब कौन बनेगा इसका निर्णय पार्टी का शीर्ष नेता, पार्टी के चुने हुए विधायक सब लोग मिलकर लेंगे। ये कितने प्रभाव मिलेगा मुस्लिम वोटों में? मुस्लिम वोटों में प्रभाव मिलेगा? देखिए, बात अफवाह की नहीं है। बात यह है कि जिस वर्ग को जब देश का विभाजन हुआ तो जो विभाजन करवाने वाले थे उनको तो लाभ मिला, लेकिन देश का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा भी था कि जो वहाँ फंस गया, उनमें ज्यादातर दलित है। गरीब और दलित वहाँ रहे थे जब सब पैसे वाले हिंदुस्तान वापस आते थे। उनको अधिकार देने के लिए कानून लाया गया, उनको नागरिकता देने के लिए कानून लाया गया। नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं है, ये नागरिकता देने का कानून है। थैंक यू।